મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે વેવ્સ બજારના લોન્ચિંગમાં ભારતની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિની શાશ્વત વારસાને હાઇલાઇટ કર્યું. તાજેતરમાં વેવ્સ બજારના લોન્ચિંગમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ભારતની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિની શાશ્વત વારસાને હાઇલાઇટ કર્યું, જે ભારતની સર્જનાત્મક અર્થવ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવા માટેનું ઈ-માર્કેટ પ્લેસ છે. ઇવેન્ટમાં વાત કરતા વૈષ્ણવે શિકાગો વર્લ્ડ ફેરમાં સ્વામી વિવેકાનંદના ઐતિહાસિક ભાષણ અને યોગ, સંસ્કૃતિ, સર્જનાત્મકતા અને આયુર્વેદ જેવા ઉપક્રમો દ્વારા વૈશ્વિક મંચ પર ભારતીય સંસ્કૃતિને ઊંચે લાવવાના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આધુનિક પ્રયાસો વચ્ચે સમાનતા દર્શાવી. વેવ્સ બજાર વર્લ્ડ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ અને એન્ટરટેનમેન્ટ સમિટનો ભાગ છે, જે ભારતના વિશાળ સર્જનાત્મક પ્રતિભા પૂલને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો સાથે જોડવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્લેટફોર્મ કલાકારો, સંગીતકારો, ફિલ્મ મેકર્સ અને અન્ય કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સને તેમના કામને પ્રદર્શિત કરવા, પ્રોજેક્ટ્સ પિચ કરવા, ભૂગોળીય સીમાઓને પાર કરીને અર્થપૂર્ણ જોડાણો બનાવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આ પહેલ વડાપ્રધાન મોદીના ભારતની સર્જનાત્મક પ્રતિભાને પ્રદર્શિત કરવા અને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવા માટેના દૃષ્ટિકોણ સાથે સંકળાયેલી છે. વૈષ્ણવે હાઇલાઇટ કર્યું કે જેમ સ્વામી વિવેકાનંદે 1893માં વિશ્વના ધ્યાનમાં ભારતની આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને લાવ્યું હતું, તેમ વડાપ્રધાન મોદી હવે ભારતીય સંસ્કૃતિની શક્તિને મહાન ગૌરવ અને વ્યવસ્થિત પ્રયાસ સાથે પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે. વેવ્સ બજાર આ દૃષ્ટિકોણનો પુરાવો છે, જે ભારતને સર્જનાત્મક અર્થવ્યવસ્થાની વૈશ્વિક રાજધાની બનાવવા માટેનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. લોન્ચ ઇવેન્ટમાં વેવ્સ પહેલ હેઠળ અનેક ચેલેન્જ અને એવોર્ડની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી. તેમાં ક્રિએટ ઇન ઇન્ડિયા ચેલેન્જનો સમાવેશ થાય છે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક, ડાન્સ, મ્યુઝિક, જાહેરાત અને શાસ્ત્રીય સંગીત જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપે છે. વેવ્સ એવોર્ડ્સ ગેમ ઓફ ધ યર, ફિલ્મ ઓફ ધ યર અને એડવર્ટાઇઝિંગ કેમ્પેઇન ઓફ ધ યર જેવી કેટેગરીમાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓને સન્માનિત કરશે, જે ભારતના સાંસ્કૃતિક અને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગોને વધુ પ્રોત્સાહન આપશે. લોન્ચમાં હાજર કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે ભારતને વાર્તાકારો, સંગીતકારો અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સના જીવંત ક્રુસિબલ તરીકે વર્ણવ્યું. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ભારતની સાંસ્કૃતિક વારસા માત્ર તેના ભૂતકાળનો પુરાવો નથી, પરંતુ વૈશ્વિક મંચ પર તેના ભવિષ્યની રીડ છે. વેવ્સ બજાર ભારતની સાંસ્કૃતિક શક્તિને પ્રદર્શિત કરવા અને વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાની અપેક્ષા છે, જે સર્જકોને વિશ્વભરમાં સન્માન અને માન્યતા મેળવવા માટે પાયાની પૂર્તિ કરે છે. अभी माननीय शेखावत जी ने कहा कि 31 चैलेंजेस तो हो गए, कुछ और होने चाहिए. अगर आपकी अनुमति हो तो एक और अनाउंस हो जाए. आज टूरिज्म से रिलेटेड और कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड जितने भी देश में इतनी बड़ी हमारी जो विरासत है, उसके ऊपर बनने वाली फिल्मों का एक और चैलेंज आज अनाउंस होता है. हमारे वरिष्ठ नेता श्री शेखावत जी, माननीय श्री शेखर कपूर जी, बहुत सौभाग्य आज आपसे मिलने का और आपकी बात जिस तरीके से आपने बात रखी सुन के आनंद आया. श्री चावला जी, श्री जाजू जी, गौरव जी, ओझा जी, उपस्थित सभी साथी, जिस भावना के साथ वेव्स की कल्पना की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर एक हमारे सामने लक्ष्य रखा था. जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में डाइवोर्स होता है इकोनॉमिक मैटर्स के लिए, वैसे ही क्रिएटिविटी के लिए वेव्स उसी स्तर का होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए और वैसा ही विश्व भर में उसकी पहचान होनी चाहिए. जब लक्ष्य इतना बड़ा रखते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप सोचिए मेहनत भी पूरी टीम को उतनी करनी पड़ेगी. पूरी टीम को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस मेहनत के साथ लगे हुए हैं वेव्स के सपने को वो रूप देने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने लक्ष्य के तौर पे रखा है. बहुत जल्दी वेव्स की फाइनल डेट्स अनाउंस कर दी आपने, ऑलरेडी आएंगी 30 अप्रैल से. अच्छा, अभी अनाउंस नहीं करनी है. अभी अनाउंस नहीं करनी है. चलिए, अनाउंस नहीं करनी है. आईएनबी मिनिस्ट्री में वैसे भी सब चीज अनाउंस्ड अनअनाउंस्ड बराबर है. मंत्रालय में भी बड़े मीडिया के साथी रहते हैं.
चलिए, बहुत अच्छा। दो तीन और बातें आपके साथ शेयर करनी थी। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डावोस के डेलीगेशन में भेजा था। कई बातों में दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे उभर के आई। विश्व में भारत की पहचान कई कारणों से बन रही है, कई ऐसे अचीवमेंट्स हैं। एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लोग चर्चा करते हैं, कैसे कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कैसे इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, कैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से जन जन के जीवन में परिवर्तन आया है। आज जो हमारी विरासत है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है, हमारा जो रिच कल्चर है जिसको ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जाना गया है, आज उसको भी उतना ही महत्व मिल रहा है विश्व फोरम में जितना टेक्नोलॉजी को और जितना अर्थव्यवस्था को। ये विश्व में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक गिना जाएगा। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने भारत की विरासत को विश्व पटल पे पहुंचाया था शिकागो में अपने एड्रेस से, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की विरासत को योग, कल्चर, आर्ट, क्रिएटिविटी और आयुर्वेद, इन सब के माध्यम से विश्व पटल पे एकदम नया स्थान दे रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक चीज है। मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद जी के बाद में पहली बार कोई ऐसा भारत से नेतृत्व उभरा है जो भारत की संस्कृति के प्रति इतना गौरवमयी भाव लेकर, इतना धैर्य के साथ, इतनी अच्छी भावना के साथ और इतने सिस्टमेटिक वे में हमारी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और वही वेव्स का उद्देश्य रहेगा, हमारी इस क्रिएटिविटी को, इस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को और नौजवानों की और क्रिएटर्स की इस ताकत को एक नया स्थान मिले, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले और भारत क्रिएटिव इकोनॉमी का कैपिटल बने। साथियों, अब तक बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में वेव्स का जिक्र किया है। आप सबने अपने अपने माध्यम से, अपने अपने न्यूज़पेपर हो, चैनल हो, यूट्यूब के चैनल हो, सबके माध्यम से आप सबने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। आप सबका धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा सभी क्रिएटर्स से, ये मौका नहीं चूकना। आप सब जानते हो, सबसे पहला क्रिएटर्स अवार्ड दुनिया में, सबसे पहला क्रिएटर्स अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष दिया था। और अब जो वेव्स जल्दी ही अनाउंस होगा, वो दुनिया का पहला कन्वर्ज्ड ऑडियो, वीडियो और एंटरटेनमेंट का दुनिया का पहला समिट होगा। तो ऐसे समिट में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना। और बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करिए, और बड़ी संख्या में भाग लीजिए और नए नए तरीकों से अपने टैलेंट को दिखाइए। और आज तो 3 जुड़े चैलेंजेस, एक और चैलेंज माननीय शेखावत जी ने जुड़वाया। इसके अलावा भी कुछ और अच्छे आइडियाज हो तो चैलेंजेस और भी जोड़ सकते हैं, आइडियाज भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।